Hello everyone, welcome back to a new video on this channel. And today we are going to talk about one of the biggest ship disaster ever happened in the history of shipping. I know you all will be guessing that it's gonna be about Titanic. अगर आप लोगों ने thumbnail देख लिया है, then it's not about Titanic, it's about Costa Concordia. As you all know that Titanic was one of the biggest incident ever happened because a hell lot of people died in that incident. After Titanic incident, a lot of regulations came into force to avoid such incidents ever happening in future. But after all, we had this incident of Costa Concordia. Okay, without wasting any time, let's talk about that incident. First, we will discuss about the difference between the Titanic and Costa Concordia. As you all know, you have seen in the movie that Titanic was very luxurious ship, but Costa Concordia was also a very luxurious ship of its time. The length of Titanic was 269.2 meters and the length of Costa Concordia was 290 meters. The breadth of Titanic was 28.19 meters and the breadth of Costa Concordia was 35.5 meters. Total GRT of Titanic was 46,329. Gross tonnage of Costa Concordia was 1,14,500. Difference between the gross tonnage is more than triple. So you can imagine how big ship it was, and you will be seeing in the visuals that it was a very big ship. Okay, you have seen in movie that Titanic was powered by coal, and coal engines are not that powerful. But in Costa Concordia there were 6 engines, and in Titanic there were only 2 engines. तो नहीं इमेजिन किया गया था कि ऐसा कुछ इंसिडेंट कोस्टा कंकोडिया से भी होगा, बट इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ कैप्टन कि इतना बड़ा हादसा हुआ. So let's talk about the incident what happened with Costa Concordia. As you all know that history repeats itself. तो 1912 में टाइटेनिक के हादसे के ठीक 100 साल बाद 2012 में कोस्टा कंकोडिया वाला हादसा हुआ. It was 13th of January 2012 and at 9:45 this incident happened. There were around 4,000 people on the ship, 3,000 were passengers and 10,000 were crew members. And the ship was on its last voyage to Tuscany. Everything was going well, everybody was enjoying. I have seen so many interviews of so many passengers traveling in that ship. Everybody was very happy, they were seeing all the luxuries, they were enjoying, they were partying, and like everything was all okay. So किसी को नहीं पता था enjoy करते टाइम कि उसी रात को एक बहुत बड़ी हादसा होने वाली है, और सब लोग बेफिक्र होकर enjoy कर रहे थे शिप के अंदर. The name of the captain of that ship was Captain Frank Scottino, and he was a very good captain. And वो इस रूट को बहुत बार इस रूट पे सेल कर चुके थे, so he was a very experienced guy. तो रात के अराउंड 9:27 पे वो ब्रिज में गए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एज वेल एज हेड वेट्रेस के साथ, जो ड्यूटी होता है टेक ओवर करने के लिए फर्स्ट ऑफिसर से. सो फर्स्ट ऑफिसर उस टाइम ड्यूटी पे थे, तो कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को ऑर्डर दिया कि वी विल गो अ लिटिल बिट क्लोजर टू द आइलैंड टू जस्ट गिव अ सेल बाय सैल्यूट व्हिच ही हैज प्रॉमिस्ड टू द हेड वेट्रेस कि हम लोग आइलैंड के करीब जाएंगे एंड वी विल गिव अ सेल बाय सैल्यूट टू द पीपल ऑन द आइलैंड. और कहा भी ये भी जाता है कि ही जस्ट वांटेड टू गिव अ गुड व्यू ऑफ दैट आइलैंड. सो सिंस इट वाज 9:45 इन द नाइट टाइम, सो क्या ही अच्छा व्यू आएगा, बट इट वाज हिज प्लान. So what he did, the first mistake he did was going closer to the island. He talked to the previous captains also about this, and I think they were ready. According to the officer on board, they said that captain had forgotten his specs. कैप्टन अपना चश्मा अपने केबिन के अंदर ही भूल के आ गए थे. सेकंड मिस्टेक वाज कि वो अपना चश्मा नहीं लेके गए थे. एंड द थर्ड मिस्टेक ही डिड वाज ही स्विच्ड ऑफ द नेविगेशनल इक्विपमेंट्स. नेविगेशनल इक्विपमेंट्स जो भी थे उन्होंने सारे को स्विच ऑफ कर दिया, बिकॉज ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वो शिप को बिना नेविगेशनल इक्विपमेंट्स के वो आइलैंड के नज़दीक ले जाके और आराम से लोगों को अच्छा एक व्यू दे पाएंगे एंड सेल बाय सैल्यूट दे पाएंगे. ऑल द शिप्स रूट्स आर प्री डिटरमाइंड. सेकेंड ऑफिसर रूट बनाते हैं पहले से ही कि शिप कहाँ से जाएगी, एंड कैप्टन ने उस रूट को डिविएट किया और उन्होंने उस आइलैंड के करीब जाने का प्लान किया. आफ्टर सम टाइम्स इट वाज 9:44 एंड कैप्टन जस्ट रियलाइज दैट दे आर गोइंग टू हिट द रॉक. जस्ट इमेजिन द सिचुएशन इन द ब्रिज. उनको लगा कि बस हम लोग अब रॉक को हिट करने ही वाले हैं. द रॉक वाज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, और शिपिंग टर्म में लेफ्ट साइड को हम लोग पोर्ट साइड बोलते हैं. सो रॉक से दूर जाने के लिए कैप्टन ने ऑर्डर दिया फर्स्ट ऑफिसर को कि ओके हार्ड टू स्टारबोर्ड. इट मीन्स कि स्टारबोर्ड की तरफ जहाज को मोड़ो, बहुत हार्ड, मतलब जो पीछे रडर रहता है जो हम लोग की शिप को डायरेक्शन देता है, तो उन्होंने बोला हार्ड टू स्टारबोर्ड. सो बट इट वाज टू लेट, और फिर कैप्टन को लगा कि इट इज़ नॉट वर्किंग. देन ही टोल्ड ओके डू 15 डिग्री टू पोर्ट साइड, बिकॉज ही थॉट कि रॉक के पास हम लोग जा रहे हैं
then hard to starboard से then we will go away from the rock, but the ship was not going too much away from the rock. Then captain thought, okay, then I will give 15 degree to port side. Then what will happen? The aft of the ship, it will go away from the rock and we will go around the rock. तो ship टकराएगी नहीं. He thought that, but the mistake of the first officer was उन्होंने गलत ऑर्डर सुना और उन्होंने गलत फॉलो किया. Then captain himself he went and उन्होंने ऑर्डर को सही करा, but it was too late. The ship went and it just crashed with the rock, and a 60-meter big hole was made into the hull of the ship, breaching a lot of watertight compartments. और क्या हुआ कि वाटर इंग्रेस स्टार्ट हो गया शिप के अंदर, पानी भरने लगा जहाज के अंदर, बट nobody cared about it. Just after a few minutes of that crashing, power off हो गया शिप का because the generator area was full of water. The engine room people called to bridge and they told, okay captain, the generator area is full of water and we cannot start the generator. Okay, the passengers started panicking because they heard a very big noise as well as they felt the vibration also, but the crew heads, they went and they announced that nothing big has happened, only there is a power failure and no need to panic, we will regain the power. And sometimes the emergency generator had already taken over. हमारे शिप में इमरजेंसी जनरेटर होता है जो कि मेन पावर फेलियर होने के बाद इमरजेंसी जो जनरेटर होता है वो पावर टेक ऑन कर लेता है एंड इट गिव्स लाइक पावर टू ऑल द इमरजेंसी इक्विपमेंट्स. सो पैसेंजर्स को काम डाउन कर दिया गया और बोला गया कि कुछ भी बड़ा नहीं हुआ है, तो सारे लोग फिर काम डाउन होकर अपना एंजॉय करने लगे वापस से. बट पावर जो था लॉस्ट हो गया था शिप का, और जस्ट आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ दैट कोलिजन शिप स्टार्टेड लिस्टिंग टुवर्ड्स starboard side. Then everybody started going to muster station और and lifeboat वगैरह रेडी होने लग गया. The second last mistake of captain was he did not inform any authority or shore people for help. शिप जो थी आइलैंड के बहुत ज़्यादा पास में थी, इसको इन्फॉर्म करना होता है कोई भी इमरजेंसी के सिचुएशन के दौरान, बट कैप्टन ने इन्फॉर्म नहीं किया. वो भी इनकी बहुत बड़ी गलती थी. उससे जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें बहुत ज़्यादा डिले हुआ. और अराउंड 10:30 उस टाइम का भी एक वीडियो वायरल हुआ था इंटरनेट पे कि एक क्रू लाइफ जैकेट पहन के जा रहा था कहीं पे थ्रू द एलीवे, बट somebody announced on PA system, why are you wearing life jacket, we are going to start sail again. So this kind of stupid incidents happened that night. Around 10:40 abandoning of ship order was given. So the rescue operation started around 11 o'clock और क्रू को रेस्क्यू किया गया. बट अनफॉर्चुनेटली टोटल 33 लोगों की मौत हुई इस घटना में, जिसमें से 27 पैसेंजर्स थे, 5 क्रू मेंबर्स थे एंड एक मौत जो हुई थी बाद में हुई थी सैल्वेज के दौरान हुआ था. सो टोटल 33 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स फ्रॉम दैट इंसिडेंट. द लास्ट मिस्टेक डिड बाय कैप्टन वाज he left the ship very early. He was among one of the people who left the ship very early. So he just went into the lifeboat and he just left the ship. The Coast Guard people, they tried to call him on board because the captain of the ship, he is responsible for the passengers and he should after everybody goes he should go. So captain की last mistake थी because वो ship से बहुत जल्दी चले गए शोर के ऊपर. उनको बुलाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉल किया गया and there was the leak audio also. ऑडियो भी लीक हुआ था उसका बात होते हुए कोस्ट गार्ड का और कैप्टन का. And all thanks to Italian Coast Guard. They did a fabulous job in rescuing, but okay, so let's focus on one thing. According to Solas, जो शिप को abandon करने का टाइम होता है वो 30 मिनट होता है क्रूज शिप के लिए, but it took 6 long hours to abandon the ship. So यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी. So after like everything was finished, सब कुछ हो गया. After this incident, there was a very big impact on Costa Shipping. उनके जो शेयर्स थे उनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा डाउन चले गए, बहुत ज़्यादा लॉस में कंपनी. और आगे चल के उनकी जितनी भी शिप्स वापस से जो नई शिप्स आई उसके ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लग गया था एंड दे हैड अ वेरी बिग लॉस. जो शिप को बनाने में कॉस्ट आई थी इट वाज अराउंड $570 मिलियन. और जो खर्च हुआ इस इंसिडेंट के बाद आइदर पेइंग टू द पैसेंजर्स, जो कि उनके इंश्योरेंस के जो फीस थी सब कुछ पे करने के बाद दे हैड टू स्पेंड अराउंड $2 बिलियन on this incident. So it was a very big loss for that company and 3 people were called for the criminal trial, जिसमें से 5 लोगों को गिल्टी फाउंड किया गया और सबको सजा हुई जेल में. और इटली में क्या होता है कि वहाँ पे अगर आपकी जो सजा है 2 साल से कम होती है देन उसको मैनेज कर लिया जाता है पैसा वैसा देके. बट द कैप्टन वाज इम्प्रिजन फॉर 16 लॉन्ग ईयर्स इन विच 10 years वाज फॉर मैनस्लॉटर, 5 years वाज फॉर मेकिंग अ शिप रैक, मतलब शिप डुबाने के लिए, और 1 year वाज फॉर लिविंग द शिप अर्ली, जो कि कैप्टन को नहीं करना चाहिए.
एंड 1 मंथ वाज फॉर टेलिंग लाई टू द अथॉरिटीज, मतलब कोर्ट वगैरह को झूठ बोलने के लिए। 2 साल लगे शिप को सैल्वेज करने के लिए। पहले तो क्या किया गया, जो भी शिप के अंदर फ्यूल था पहले से, उसको शिप को डिफ्यूल किया गया ताकि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं हो। उसके बाद 2014 में शिप को जिनेवा ले गया गया, वहाँ पे लास्ट वॉइस फॉर स्क्रैपिंग, और शिप की इतनी अच्छी जो शिप थी, इतनी लग्जरियस जो शिप थी, उसकी स्क्रैपिंग हुई एंड इट टुक 3 लॉन्ग ईयर्स फॉर टोटली स्क्रैपिंग द शिप। टोटल 33 लोगों की जान गई इस शिप में। एंड आफ्टर टाइटैनिक मेरे को लगता है कि यही शिप अभी तक का ये सबसे बड़ा हादसा था। तो दिस वाज ऑल अबाउट कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद आती है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं ऐसी और वीडियोस लाऊंगा शिप इंसिडेंट के ऊपर, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज लेके आऊंगा मैं।